Hello everyone, I'm so happy to have Anubhuti with us. Anubhuti is a friend, a philanthropist who is doing great work. She's a doctorate in sociology, also a published writer, and she's a mother of a foundation called Neofusion Foundation. So, Anubhuti, thank you for coming over live and talking to people. Please tell us, how did this whole career shift started with you from a comfortable job and from that space to this age today where you're handling almost how many kids you have in your school? Right now we are having around 500. First of all, thank you so much, Akash, for calling me for such a beautiful space, and I'm really thankful to you for My choosing pleasure, my me pleasure. among 21. And yes, right now we are having around 500 plus adolescents. Those who are coming to us, and straightforward, we are working with those adolescents. Until now, we have worked with more than 6,000 adolescents in different states, like 5 states we have worked till now. So yes, it's a beautiful journey, and I started it as a passion, and it becomes my profession now, and it's a purpose of my life, and I'm able to sync it with my life now. That's why I love my work a lot, and yes, as we all are inside our home because of this virus and everything, I'm missing my kids a lot, and they are missing me a lot. So sometimes I feel that our souls are connected. Yeah. Anubhuti, I absolutely know that you're very passionate to what you do, but जैसे आपने कहा कि this is also become your profession. Because the industry or the way things work are very professional, even in a public sector of NGOs as well, right? No matter how much passionate you are, there are those times when you are being treated very, the business is rude enough. Right. So how do you got practical with time? How वो passion को practicality से कैसे लेकर गए? I'll tell you, in 2012, suddenly while taking my painting classes, as I'm an artist, so I was taking home tuitions and I was working with Times and I as an art consultant. At that time, suddenly something happened with my health and I was bedridden for 3-4 months. At that time, I realized that something is missing. Maybe I'm working with adolescents, I'm earning good, and everything was there, but something was missing. Yeah. So at that time, I had a word with my husband that I'm missing something and I want to do something else apart from what I'm doing right now. तो राहुल ने बोला कि हाँ बिल्कुल तुम्हें क्या लगता है what you want to do. So at that time, I was reading a book called Focus on Your Life, Focus on Your Dream. So उसमें कुछ realization questions थे that I answered, and after that मुझे लगा कि मुझे कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहिए. And in the meantime, मेरी कुक थी, उसके बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी थी. एंड उससे पहले वो बहुत ज्यादा उसकी तारीफ करती थी आकर कि वो बहुत अच्छे से पढ़ता है और बहुत आगे जाएगा दीदी, मेरे को उसी से सब कुछ है कि मैं वो कुछ करके दिखाएगा. एंड सडनली जब उसने पढ़ाई छोड़ दी तो शी वाज लाइक इन टीयर्स कि मुझे इससे आशा थी और इसने भी पढ़ाई छोड़ दी. तो एट दैट टाइम आई रियलाइज कि क्यों ऐसा, क्यों पढ़ाई क्यों छोड़ दी. तो मैंने एक रिसर्च किया, जयपुर में थी मैं उस समय, और मैंने एक सर्वे किया. सर्वे के बाद मुझे एक फाइंडिंग ये मिली कि अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पर फ्री एजुकेशन मिल जाती है या फिर पेरेंट्स 400-500 भी अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चों के साथ वो प्यार नहीं है, वो काउंसलिंग नहीं है, उनको ये नहीं पता कि उनको करियर में आगे बढ़ना कैसे है. लाइक अभी भी अगर कोई भी बच्चा, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर करीब 10 साल के बच्चे से बात करता है या 8-9 साल के बच्चे से बात करता है और पूछता है कि आपको क्या बनना है, तो आपको सुनने को मिलेगा मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे मतलब दे हैव बिगर ड्रीम्स, बट हाउ टू फुलफिल देम वो उनको
नहीं पता होता। एंड एडोलेसेंस एक ऐसा टीनेजर, एक ऐसा टाइम पीरियड है जब आपके अंदर बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, और वो एनर्जीज को अगर आप सही जगह लगा देते हैं तो आप सफल हो जाते हैं, और अगर उनको एनर्जीज को अगर आप गलत जगह लगा देते हैं तो आप असफल हो जाते हैं। एंड यू आर सीइंग सो मेनी केसेस जहाँ पर जुवेनाइल क्राइम बढ़ा है और बढ़ते हुए बच्चे काम कर रहे हैं गलत। तो मैंने कुछ स्कूल्स में अप्रोच किया कि मैं क्ले मॉडलिंग में हूँ, मैं सिखाना चाहती हूँ, तो कुछ से ना मिली लेकिन कुछ से हाँ मिली। देन आई स्टार्टेड गोइंग टू डिफरेंट स्कूल्स एंड स्टार्टेड टेकिंग वर्कशॉप्स। वर्कशॉप्स लेने में मुझे बच्चों से इंटरेक्शन करने को मिला, उनको जानने को मिला। तो उस पर्टिकुलर स्कूल्स में बहुत ज्यादा बच्चे अटेंडेंस नहीं उनकी इम्प्रूव हो रही थी, उसके बाद बच्चों की अटेंडेंस इम्प्रूव हुई। उसके बाद हमने 2 महीने का समर कैंप वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, एंड दैट वे द न्यू फ्यूजन स्टार्टेड। एंड जो काम मैं थोड़ा थोड़ा करके कर रही थी, एंड आफ्टर अ टाइम आई रियलाइज कि नहीं, मुझे मेरे बच्चों को मेरी ज्यादा जरूरत है। And the moment I started the Jaipur chapter, मेरे हस्बैंड की जॉब चेंज हुई एंड वी शिफ्टेड टू गुड़गांव। एंड मैं थोड़े दिन तक बेटियों के साथ वहां पर रहती रही, एंड देन आई केम हेयर एंड अगेन आई वाज नॉट हैविंग एनी वर्क बिकॉज वो मैं जयपुर का अपने टीम को सौंप के आ गई थी। तो यहाँ पर मैं जिस सोसाइटी में रहती थी वहाँ के पास में एक साईं बाबा मंदिर है, वहाँ पर बहुत सारे लेबर्स के डेली जो लेबर होती है उनके बच्चे वहाँ पर आते थे और प्रसाद वगैरह मांगते थे। एंड आई गॉट एन अनदर अपॉर्चुनिटी कि मैं उनके साथ जाऊं और बात करूं, और मैंने उनके पास गई तो मैंने पढ़ाने की बात नहीं की, मैं किताबें लेकर नहीं गई, मैं उनसे गप्पे मारने गई। सो दे कैन बिकम माई फ्रेंड्स एंड दे स्टार्टेड शेयरिंग विद मी कि क्या करना है, कैसे करना है। तो उन्होंने शेयर किया कि हमें पेंटिंग का शौक है, हमें डांस का शौक है, तो मैंने कुछ कलर्स उनको दिए, फिर मैं स्टोरीज उनको सुनाती थी। सो दैट वे दे बिकम माई फ्रेंड्स। राइट। सो मैं अनुभूति, एक तो होता है सोसाइटी के लिए काम करना, एक समाज के लिए काम करना, और एक समाज का आपको काम ना करने देना। 2 तरीके के समाज। एक तो वो समाज जिसके आसपास आप रहते हैं वो आपको काम नहीं करने देता, एक वही समाज जिसके लिए आप काम करना चाहते हो वो भी आपको काम नहीं करने देता। It is not easy to get them out from their comfort zone or from their lifestyle, you know. So 2 kind of issues you must have faced. उसके बारे में कुछ बताओ। मेरे को कभी भी ऐसी कोई चैलेंज आया नहीं, great. कि मुझे कम्युनिटी से नो मिली हो। एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस, मे बी बिकॉज हमने जो मॉडल चुना वो मॉडल हमारा इस तरह से था कि बच्चों ने कभी मना नहीं किया। एंड इनफैक्ट आज जो बच्चे 12th कर रहे हैं वो मेरे से ये बोलते हैं कि हम यहाँ पर डांस सीखने आए थे और हम पता नहीं कब पढ़ने लगे, हमें भी पता नहीं चला। सो व्हाट वी हैव डन, हमने हमारा जो मॉडल है वो परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट पर बेस्ड है। तो हम बच्चों को डांस, थिएटर, पेंटिंग के बहाने से अपने पास बुलाते हैं और फिर धीरे धीरे बच्चों को काउंसिल करते हैं कि पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है। और जब वो एक बार पढ़ाई में इन्वॉल्व हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा उनको समझ में आने लगता है कि हाँ इसके अलावा पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, तो फिर हम उनको धीरे धीरे NIOS बोर्ड से या उनको स्कूल्स में एडमिशन करते हैं। तो दैट वे मुझे कभी भी बच्चों की तरफ से कोई चैलेंज नहीं आया। इनफैक्ट 2017 में हमने मॉर्निंग स्कूल शुरू किया एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ द किड्स एंड देयर पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप शुरू करो। सो समवेयर आई एम रियली थैंकफुल टू द गॉड दैट मुझे वो चैलेंज कभी आया नहीं, एंड टचवुड आगे भी नहीं आया। That's amazing. हाँ, from the society, from my own family members और सबसे आया, क्योंकि उनको लगता था कि मैं छोटे बच्चों के साथ काम करूं। टीनेजर्स ऐसे बच्चे होते हैं जो कि सुनते नहीं हैं और क्राइम में भी हो सकते हैं, छीना झपटी भी बहुत करते हैं। सो थोड़ा सा फैमिली की तरफ से आया कि तुम्हें काम ही करना है तो छोटों के साथ क्यों नहीं कर सकती हो, 7-8 साल के बच्चों के साथ करो। बट आकाश जी, जो मैंने देखा है ज्यादातर NGOs जो हैं वो उसी एज के साथ काम करते हैं, लेकिन जो चेंजेस आते हैं, जो लाइफ या तो खराब होती है या अच्छी बनती है, वो टीनेज में जाके बनती है। तो मैंने सबको समझाने की कोशिश करी। शुरुआत में जब मैंने काम किया, इनफैक्ट गुड़गांव में जब काम किया, तो मैंने घर पे किसी को बताया नहीं।
मेरे घर में सबने मना कर दिया था। जाती थी, पढ़ाती थी, करती थी, बच्चों से गप्पे मारती थी। सो दैट वे हमने डांस क्लासेस सबसे पहले शुरू करी, पार्क में शुरू करी। वहाँ के जो पार्क में जो मंदिर के जो अथॉरिटी थी उन्होंने मना किया कि यहाँ नहीं कर सकते हो। तो मैंने एक ही बात बोली कि साईं बस सामने बैठे हैं, उन्होंने मुझे बोला है जिस दिन वो मना करेंगे उस दिन मैं नहीं करूंगी। तो उनके पास फिर कोई मेरे लिए आंसर नहीं था, तो उन्होंने भी फिर मना नहीं किया। फिर उन्होंने कहा पार्क खराब हो रहा है, तो हमने पास में, उन्होंने कहा कि यहाँ कर लो। हम रोज वहां पर जाके कम से कम 15 बाल्टी पानी डालते थे, उसको स्मूथ करते थे। तो 2 साल तक हमने ऐसे छत के नीचे हमने काम किया और उसमें एक अलग आनंद आता था। उसके बाद हमने एक क्राउड फंडिंग साइट से हमने क्राउड फंडिंग किया, उससे हमने कुछ रेंट निकाला, फिर हमने स्पेस लिया। तो आप जिस स्पेस में आप भी आए हैं वो अब हम ले पाए थे। वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हार्ट टचिंग जगह है। मतलब माई एक्सपीरियंस इन योर स्कूल हैज़ बीन ब्यूटिफुल, हैज़ बीन लाइफ चेंजिंग फॉर मी टू सी कि बच्चों को कितना पढ़ने में आस्था है। और आप जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं अनुभूति, यू आर टीचिंग देम विद डिग्निटी, दैट्स अ वेरी बिग थिंग यू आर डूइंग. Kids have so much of dignified self-respect and they respect their colleagues, their teacher. So that's a very big thing because बहुत जगह बच्चे इसलिए भी नहीं पढ़ पाते because they come from a lot of inferiority complexes. Right. So what is your module like? Because मुझे लगा आपका बहुत अलग सा मॉड्यूल रहता है, पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है. So how do you do that in your future? So as I told you कि हम परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट पर पहले फोकस करते हैं, तो हम डांस, थिएटर, पेंटिंग, मार्शल आर्ट, सिंगिंग के थ्रू बच्चों को अपनी तरफ इन्वॉल्व करते हैं. वंस दे आर देयर इन आवर सिस्टम, फिर उनको हम धीरे धीरे, जो भी स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं या नेवर गॉन टू स्कूल हैं, उनको हम धीरे धीरे फिर उनको काउंसिल करते हैं, उनको इवनिंग क्लासेस में ज्वाइन कराते हैं. वंस दे आर इनटू आवर इवनिंग क्लासेस और एक हमारा बॉन्डिंग बन जाता है, उसके बाद हम धीरे धीरे उनसे बात करते हैं. मैं बात करती हूँ, हमारे फैकल्टीज बात करते हैं कि पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है. हम जहाँ पर बैठे हैं, हमारे में और आप में बस नहीं अंतर है कि हमने पढ़ा, इसलिए आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ. तो उनको पढ़ने का मतलब इम्पोर्टेंस उनको सिखाते हैं. एंड इट्स लाइक कि पढ़ना ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. राइट. तो आप जो भी सीखना चाहते हैं वो सीखें. सो हमारा बेसिकली ये है कि उनका जो भी पैशन है उनको हम उनका कैसे प्रोफेशन बनाएं, उनको कैसे उनको चैनलाइज करें कि वो मे बी इफ दे वांट टू बिकम अ कोरियोग्राफर, इफ दे वांट टू बिकम अ मार्शल आर्टिस्ट, इफ दे वांट टू बिकम अ एनीथिंग लाइक, जिसमें भी जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, उनको हम कैसे रास्ता दिखाएं. एंड दोज हु आर सेइंग दैट आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर एंड हमें लग रहा है कि वो बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, तो उसको कैसे हम काउंसिल करें कि उसका वो डिसहार्टन भी नहीं हो और वो दूसरे फील्ड में आराम से जा भी सके. तो समवेयर एक 1-to-1 कनेक्शन हमारा बच्चों के साथ है, जो कि मैं अभी के भी पीरियड में देख रही हूँ. पिछले 10 दिन में हम लोग हर दूसरे तीसरे दिन वीडियो कॉल कर लेते हैं व्हाट्सएप पर, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के पास व्हाट्सएप नंबर है. आई हैव अ ग्रुप, बच्चों के ग्रुप मैंने बनाए हुए हैं, तो उस पे बच्चे मैसेज करते रहते हैं. इनफैक्ट आई एम प्लानिंग कि नेक्स्ट वीक से 2nd और 3rd के बाद से मैं थोड़ा सा ऑनलाइन उनको क्लासेस ले सकूं ऑन द Zoom. दोज हु कैन एक्सेस. सो जो कि 12th में आ गए हैं, सो बिकॉज दे आर ऑल्सो गेटिंग बोर्ड राइट नाउ. सो उनको कैसे मैं ट्रैक पे, हाँ कहीं ना कहीं डर है कि जो शाम को मेरा एक बड़ा चंक आता है बच्चों का, वो क्योंकि नहीं पढ़ेगा तो वो पीछे जाएगा. तो लेकिन अब मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि सेफ्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट है अभी. तो उनको फिर हम उनके साथ मेहनत करेंगे दोबारा से. एंड आई एम इन टच विद देम, मोस्टली उनके साथ मैं टच में हूँ और थ्रू द व्हाट्सएप, थ्रू द कॉल्स, कि वो सही है, उनको खाने की तो कोई जरूरत नहीं है या किसी भी चीज की तो नहीं है. तो एक कनेक्शन है अभी भी और वो रहता है, और जयपुर से भी रहता है, जयपुर के बच्चों का भी रहता है, यहाँ का भी रहता है. So you keep on traveling? Sorry? So you travel to Jaipur as well to administer that school of yours? Yeah. Right. So I travel to Jaipur also, and after
with that we are having CCTV vigilance also there. Okay. So अभी भी मैं इतना ज़्यादा NGO को मिस कर रही हूँ कि मैं CCTV पर जाकर ही एक एक रूम का चक्कर लगा आती हूँ कि अच्छा हाँ यहाँ पर है, सब है, हम लोग एक दिन जाएंगे. But अनुभूति ये जो 21 days है, they are also very detoxifying for you because you have been doing such great hard work. It's your personal me time. You might re-strategize about how you're going to take forward things in the NGO, how that whole conceptualization would change after the quarantine ends. And this is also needed for somebody like you who's always on toes, right? No family time. So, this is a different experience. So my kids are enjoying as mama is at home, and we are able to play together. We are playing mobile games, Free Fire. आजकल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चल रहा है, and I'm able to play that with my kids, and I'm able to talk with my husband right now because he is also at home. So yes, somewhere जो हमारे खुद के family members थे, हमें लगता था कि उनके साथ आसान है रहना, लेकिन somewhere I'm feeling कि वो एडजस्टमेंट करके रहना ज्यादा मुश्किल हो रहा है. So लेकिन that is another good feeling, and हमने सबने काम डिवाइड किया हुआ है. So cooking मेरा काम है and mopping वगैरह मेरा काम है. Other I am teaching my kids. My daughter is asking कि पराठा कैसे बनाना है, and this and that. So that also we are enjoying. So that is another good thing is going on. Yes, but yes, I'm missing my other bachas also. Yeah. So, but I think with this Zoom technology, because it's now very much in, you can use this as taking classes for anybody around the world now. If this technology, right, you might be able to use this technology for your own NGO. Right. Now they don't have to come in the class to teach students, but this technology, I think this time can bring good change also. Do you think? There'll be a different virtual. Yeah, बिल्कुल. That's true. हाँ, बिल्कुल कुछ नई चीजें खोजने हैं. बस यही प्रॉब्लम है कि जिनके पास नहीं है, those kids are not having the WhatsApp facilities or the Facebook account or Zoom. उनके साथ थोड़ा सा इशू है. बाकी कोशिश यही कर रहे हैं कि आसपास जो उनके फ्रेंड्स रहते हैं वो उनको हेल्प कर सकें. सो दे मतलब क्योंकि कम्युनिटी में ऐसा होता है कि दे आर लिविंग इन वन बिगर हाउस एंड एक एक कमरे में एक एक फैमिली रहती है. तो इफ अ किड कैन कम टू अनदर रूम, सो इस तरह से होता है. तो दैट वोंट क्रिएट मच ऑफ हैसल. लेकिन हाँ, तो अभी वही कोशिश कर रहे हैं. एंड इनफैक्ट हमने लास्ट ईयर प्लान भी किया था. इनफैक्ट फ्रॉम द किड्स ओनली we started a YouTube page also. Wow. Facebook पर भी हमने कुछ लाइव वीडियोस डालने शुरू करे थे, and that was from the student for the students. Right. So हमारे बच्चे बनाते थे and वो लोग डाल रहे थे और बच्चों के लिए. So in fact I was telling them कि तुम्हें कैसे तुम लोग आए हो, कैसे तुम लोग मोटिवेट हुए हो, तुम्हें क्या लगता है after 4 years or 3 years की पढ़ाई कैसे इम्पोर्टेंट है, और या फिर तुम कैसे आगे कर सकते हो. If you are appearing from NIS, हिंदी से तुम इंग्लिश बोर्ड में आए हो तो तुम्हें क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं. If you can make small video out of it, so it can help others also. Right. So हमने वो भी कोशिश किया था, and we are trying कि हम उसको थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन करें, क्योंकि वो जो बच्चे कर रहे थे those are in 12th right now, तो उनका पढ़ाई का थोड़ा ज्यादा चल रहा था. तो आपने मुझे अच्छा हुआ याद दिला दिया आकाश जी. एंड I'll ask them कि तुम एक वीडियो बना रहे हो रोज and you are going to put on the page now because you are free. Right. So now they can do it. Yeah. For sure. Yeah. Also अनुभूति, because आप इतनी जिंदगियों से जुड़े हुए हो और ये जिंदगियाँ आसान नहीं है. To live the life they are living. How much of humbled this has made your life? कितना humbling लाता है ये, क्या experiences लाता है? Is your perspective to life have also changed with them? Yes, for sure, because they taught me each and every day, a single moment, so many things I have learned from them. मतलब कुछ नहीं होता ना तब भी मुस्कुराते हैं, कुछ नहीं होता भूखे होते हैं तब भी खुश रहते हैं, और मतलब
थोड़ा सा प्यार करो तो इतना सारा प्यार देने के लिए आगे आ जाते हैं। तो मुझे लगता ही नहीं है कि मेरे को अभी भी ना पूरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं व्हेन आई एम गिविंग द आंसर। सो ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई भी पीछे है। बस मैं एक ही चीज चाहती हूँ, बिकॉज आई हैव डन लॉट्स ऑफ फाइट्स कम्युनिटी में, कि हर अंडर प्रिविलेज बच्चे को देखकर लोगों के दिमाग में ये आ जाता है गलती की है तो इसने ही की है। सो आई रियली वांट टू चेंज दैट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव कि जो सामने से बच्चा आ रहा है, अगर उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिल से अच्छा नहीं है। सो अभी हमने जो एक प्रोग्राम लॉन्च किया है वो हम कहलाते हैं उसको बेटी पढ़ाओ बेटा संवारो। वाह। तो क्योंकि हमने जैसे देखा कि चाहे वो प्रियंका रेड्डी का केस था या निर्भया का केस था, दोनों बेटियां पढ़ी हुई थी, बची हुई थी, पढ़ी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं बेटे संभरे हुए नहीं थे जिन्होंने गलत काम किया उनके साथ। तो सरकार को, हम सबको बेटों के साथ काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मुझे नहीं लगता कि बेटों की गलती है, क्योंकि बेटों को परवरिश इस तरह से मिली हुई है कि उनको लगता है कि ये हमारा हक है। और उनको उनको क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं इंडियन साइकोलॉजी में, या वैसे भी हम बात करते हैं कि तू क्यों लड़कियों की तरह रो रहा है, तो क्यों लड़कियों की तरह लड़ रहा है, तूने लड़की की तरह मेकअप क्यों किया है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो और लड़कों को भी नहीं सुना जाता। तो हम बात करते हैं कि अब बच्चा कुछ भी पूछने आ रहा है तो हम उसको पहले धुतकार के भगा देते हैं कि नहीं नहीं ये क्या फालतू की बात पूछ रहा है। तो वो कहाँ पूछेगा, वो अपने दोस्तों से पूछेगा, अपने किसी ऐसे बड़े से पूछेगा जिससे हिम्मत रख सकता है, और वहां से आधी अधूरी नॉलेज मिलेगी, और फिर वो कहीं ना कहीं गलत 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 और गलत होता चला जाएगा। तो कोई भी क्रिमिनल बन के नहीं आता, लेकिन हाँ हम क्रिमिनल बनने से उनको रोक सकते हैं। तो मेरे जितने भी बच्चे हैं, एवरीवन लाइक कि हमें कुछ करना है और हमें सुधारना है, हमें अपने फ्रेंड्स को इस तरह से नहीं सोचने देना और ये सब काम करना है। तो हमें अभी बेटा सवालों पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, सभी को ज्यादा जरूरत है। अगर वो काम हम कर पाए तो शायद हम जो भी क्राइम है, जो भी रेप केसेस हैं, उनको हम रोक सकेंगे। तो हम पूरा वो मैं मॉड्यूल एक तैयार कर रही हूँ कि हाउ आई कैन गो टू डिफरेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट से हम कैसे टाई अप कर सकते हैं, सो दैट वे इफ वी कैन वर्क विद मोर एंड मोर बॉयज, गर्ल्स के साथ। क्योंकि हम उनको गर्ल्स बॉयज से बात करने भी जाते हैं ना, तो हम ये दिखाते हैं कि लड़कियों के साथ ऐसा बुरा होता है, लड़कियों के साथ ऐसा खराब होता है, लड़कियां ऐसी हैं। हम ये दिखाते ही नहीं है कि लड़कों की क्या प्रॉब्लम्स है। एंड हमारे यहाँ जो माहौल है हमारे एनजीओ में, वी आर सो ओपन, वी टॉक ऑन ईच एंड एवरी इशू वेरी ओपन। नाइस। So if we are taking any session on menstrual hygiene, we are taking it all together. Wow. Where the boys will be there, the girls will be there. So सबको पता रहनी चाहिए कि क्या गर्ल्स के साथ इश्यूज हैं, क्या बॉयज के साथ इश्यूज हैं, बॉयज के साथ अदर बहुत सारे इश्यूज होते हैं। हम उन पे बात ही नहीं करते। जब हमने उनको अलग कर दिया है तो फिर वो करेंगे ही ना कुछ तो सोचेंगे ही उनको। और फिर एक जो एक है मैस्कुलिन, वो जो एक फीलिंग बचपन से दे दी जाती है, तो अगर वो चीज दे दी जाएगी। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है विच इज वेरी वियर्ड बट आई वांट टू शेयर इट हियर, कि बचपन में जब छोटा सा बेटा होता है ना, उसको बोलते हैं कि जा, उसको सुसु आई तो उसको बोलते हैं जा तू उधर कोने वहां पर जाके करा, एंड ही ओपन हिज जिप एंड ही लड़की को बोला जाता है हाइड करके करो, पीछे जाके करो, बाथरूम में जाकर करो। छोटे से लड़के को जिप खोलना हम माए, हम फैमिली मेंबर्स बहुत आसानी से सिखा देते हैं कि तुम कहीं पे भी खोल सकते हो। तो क्या वो चीज, एक छोटी सी चीज, क्या उसके दिमाग में नहीं बढ़ जाएगी? तो फिर वो क्या गलत जगह पर फिर वो चीजें नहीं होंगी। तो हमें कहीं ना कहीं अपनी सोच को उस ढंग से बदलना पड़ेगा। तो वो हमें, मैं नहीं कहती कि मैं, इनफैक्ट अभी भी ये होता है कि बेटियां आके कहती हैं हमारे घर में तो ऐसा होता है, बेटे कहते हैं हमारी तो मम्मी नहीं मानती। मैंने कहा बेटा लड़ने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए तुम चेंज हो रहे हो, तुम आगे की पीढ़ियों को चेंज करोगे, दैट्स इट। जितना मम्मी पापा चेंज हो सकते हैं उनको करेंगे, लेकिन हमें चेंज होकर आगे चेंज करना है। सो दैट इज हाउ वी आर वर्किंग। तो
कहीं ना कहीं 1-to-1 कनेक्शंस बहुत ज्यादा है. एवरी डे वी डू द मेडिटेशन, सो वहां से 1-to-1 कनेक्शन बहुत ज्यादा मेरा डेवलप होता है. इनफैक्ट व्हेन आई टेक द मेडिटेशन सेशन, तो मुझे उस दिन अंदर से फीलिंग आ जाती है, उनकी से वाइब्स आ जाती हैं कि दे आर फीलिंग दिस एंड आई शुड टेक द मेडिटेशन ऑन दिस इशू. सो वो एक कनेक्शन है. तो इस वजह से शायद वी आर एबल टू वर्क. एंड जो आपका पहला क्वेश्चन था कि कम्युनिटी से कभी चैलेंज तो नहीं आया, सो वो नहीं आता. एंड क्योंकि बच्चे मुझे माँ बोलते हैं, तो वो हक भी हो जाता है कहीं ना कहीं उनको डांटने का भी. तो मैं जब टीचर की तरह डांटती हूँ तो अलग डांटती हूँ, और फिर जब बोलती हूँ कि अब मैं तुम्हारी माँ हूँ तो माँ बोलते हो, तो अब तुम मुझे अलग ढंग से डांट खाओगे, तो वो भी कर सकती हूँ, क्योंकि वो दोनों रूपों में मैं आ जाती हूँ. बट इतनी करेज कहाँ से मिलती है अनुभूति? हाउ डू यू गेट दिस करेज? फ्रॉम द किड्स ओनली. उनके सर्कमस्टांसेस को देखकर, उनकी थॉट प्रोसेस को देखकर, उनकी फीलिंग्स को देखकर. मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, बट समहाउ वो मैंने कभी उसको ड्रॉप कर दिया व्हेन आई वाज इन स्कूल. मैं कभी उस चीज को आगे ले जा नहीं पाई. शायद नहीं ले जाना मेरे लिए अच्छा हुआ, क्योंकि मैं इतने फ्रीली अब काम कर पा रही हूँ. कहीं ना कहीं वो देश के लिए मुझे काम करने की बहुत इच्छा रही है कि मैं भारत के लिए कुछ करूं. तो वो एक मोटिवेशन मुझे मिलता है. एंड इनफैक्ट व्हेनेवर मैं भी डाउन होती हूँ, कभी कभी मैं मतलब बहुत ज्यादा सोचने लगती हूँ कि क्या करूं, कैसे करूं, तो बच्चे ही ना कुछ ऐसी पोस्ट डाल देते हैं आकाश जी, या ऐसी कोई ना कोई चैलेंज मेरे लेके मेरे सामने उस दिन आ जाते हैं. मतलब मैं सच्ची में ये बात बता रही हूँ, जिस दिन मैं डाउन होंगी ना, उस दिन बच्चे कुछ ना कुछ चैलेंज लेके या कुछ ना कुछ ऐसी पोस्ट मेरे लिए लिख देंगे कि मैं फिर एनर्जाइज हो जाती हूँ. मुझे लगता है कि मुझे हारने का तो हक है ही नहीं. मैं तो हार ही नहीं सकती, क्योंकि ये मुझे हारने नहीं देंगे. और सच्ची में लास्ट ईयर हमारे पास बिल्कुल फंड्स नहीं थे, क्योंकि मैं अगेन आई वाज नॉट कीपिंग गुड हेल्थ वाइज. तो मेरी थ्रोट में कुछ इन्फेक्शन हो गया था थायराइड ग्लैंड्स में. सो हमारे फंड्स का बहुत क्रंच आ गया था, एंड दैट वाज जून. तो मैंने बच्चों को मैसेज किया कि बेटा मेरे पास फंड्स नहीं है, एंड आई डोंट थिंक सो कि मैं स्कूल को रन कर पाऊंगी, क्योंकि उसका किराया भी मेरे पास नहीं है नेक्स्ट मंथ का. तो बच्चों ने कहा कि, मैंने कहा तुम कोशिश करके तुम चाहो तो दूसरे स्कूल्स में एडमिशन्स ले लो, जिससे तुम्हारा करियर खराब नहीं हो. तो बोले आप हमें सड़क पर बैठ के पढ़ा लेना, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे. जब उन्होंने मुझे ये बोला ना आकाश जी, तो मैंने कहा कि मैं कैसे हार सकती हूँ. अनु तू कैसे हार सकती है? तू लोगों को पोस्ट कर, लोगों को मैसेज कर, कहीं ना कहीं से फंड्स आएंगे, बच्चे नहीं हारने देंगे थे. तो दैट वे मेरे को एनर्जी फिर से मिल जाती है, एंड आई स्टार्ट वर्किंग अगेन. मैं बोल नहीं सकती थी, तो आई स्टार्टेड सेंडिंग द मैसेजेस ऑन द व्हाट्सएप की फंडिंग की क्राइसिस है, ये है वो है, सब कुछ है. फिर फंड्स आए, फिर हमने काम करना शुरू किया. गवर्नमेंट का कितना रोल रहता है फॉर फंड्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेशन? हम लोग, हाउ मच इज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिव लाइक योर्स? गवर्नमेंट का ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है. इट्स दे हैव देयर ओन स्कीम्स. तो आप उनकी स्कीम्स में अप्लाई करते हैं. इफ यू फील यू आर एबल टू फिट देयर, देन दे विल गिव यू द फंड्स. तो अभी तक हमारे यहाँ कोई भी गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं है. अभी तक इंडिविजुअल फंडिंग के थ्रू और थोड़ी बहुत छोटी छोटी CSR फंडिंग के थ्रू ही हमारा जो है NGO रन कर रहा है. एंड वी आर स्पेंडिंग अराउंड 2 लाख पर मंथ on both the centers. क्योंकि प्रोफेशनल टीचर्स आते हैं, डांस टीचर हैं, या कथक जैसे हमने शुरू किया है, थिएटर के हैं, मार्शल आर्ट के हैं. नाउ वी आवर किड्स आर रेड बेल्ट इन ताइक्वांडो, गोइंग टू बी ब्लैक बेल्ट. उनका मई में एग्जाम था, बिकॉज ऑफ दिस थोड़ा सा टल जाएगा, बट सून मेनी ऑफ देम विल बी द ब्लैक बेल्ट. सो वही है कि इंडिविजुअल, अभी तक इंडिविजुअल के थ्रू चल रहा है. नाउ आई एम ट्राइंग कि मोर CSR कैन बी जॉइन
hands and we can work more efficiently, क्योंकि funds नहीं होते हैं तो मेरा पूरा ध्यान फंडिंग की तरफ चला जाता है. एंड आई रियली वांट टू वर्क विद मोर एंड मोर किड्स, क्योंकि हमने जिस स्लम में हम ज्यादातर काम करते हैं उस स्लम्स में करीब 400 से ज्यादा एडोलेसेंट्स हैं व्हेन वी डिड द सर्वे, और बहुत स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं. तो अगर वही हमारे लिए हो, क्योंकि अभी हमारे करीब 250 से 250 बच्चे हैं गुड़गांव में, उनके लिए बिगर स्पेस चाहिए, मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए. तो वही है कि मुझे मालूम है होगा, एक समय आने पर होगा, when God will think that हाँ मैं प्रिपेयर हूँ to handle this much, that time it will happen. तो एक पॉजिटिव है कि हाँ होगा. So वो हाँ होगा की वजह से सब कुछ होता है. And I am a big devotee of Sai Baba, and I have always says कि ये बाबा का काम है, जो कि मैं I am a medium. It's the work what I am doing is his work. I'm just a medium. तो वो ध्यान रखेंगे, मुझे खाली काम करना है. Right. And it happened. Right. So now if I ask you, what is ahead now? After all these circumstances, I think financial बहुत crunch आने वाला है. It will also affect, right. It will affect the kind of working you are doing at the NGO level and stuff. Yeah, for sure it will affect us because companies के पास इतना पैसा नहीं होगा, लोगों के पास सस्टेन करने के लिए पैसा उनको चाहिए होगा. लेकिन I know my sponsors, जो कि regular sponsors हैं, they are there to help me out, and above that it's all the good. मैं जो project करूँगी universe में, that will come to me. So I'm just thinking कि हाँ मेरे लिए अच्छा होगा, तो हाँ मेरे लिए अच्छा होगा. So अभी तो right. So जो भी होगा, अगर financial crunches आते हैं, मेरी टीम इतनी अच्छी है कि they are not going to ask me the salaries and everything. Yeah. I know that. So जैसे भी होगा हम करेंगे, लेकिन बच्चों के लिए काम करना है तो करेंगे, और बच्चे भी करेंगे. So what would be your last message to everybody who's watching from your side, from Neofusion, before you go? क्या कहना चाहोगे आप? बस अभी के लिए तो फिलहाल सब घर पर रहें, सेफ रहें. और उसके बाद सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आप मैं ये चाहती हूँ कि अगर हम जैसे व्यक्ति जो है, दोस्त हुआ मतलब अच्छी स्थिति में है, प्रिविलेज्ड फैमिली में पैदा हुए, एक भी अंडर प्रिविलेज बच्चे का हाथ अगर हम एक फैमिली भी थाम लेगी, तो अगले आने वाले 10 से 15 सालों में ये दुनिया बदल. और अंडर प्रिविलेज जो भी फैमिली से बच्चे आए हुए होते हैं, हर बच्चा हर क्रिमिनल नहीं होता. उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, दे बिकम क्रिमिनल्स, और वो उस तरह से आ जाते हैं. तो प्लीज उनको एक उस निगाह से देखें कि वो भी बच्चा है और उसने कोई क्राइम नहीं किया है, और उनको वो दर्जा देने की कोशिश करें. और बस आप जिस भी एनजीओ को जहां पर भी हेल्प करना चाहते हैं, जिस भी बच्चे को हेल्प करना चाहते हैं, एक बच्चे की जरूर आप हेल्प कीजिए कि उसकी लाइफ बदल जाए, और उसको ये बोलिए कि अब तुम्हें इतना सक्षम बनना है कि तुम्हें आने वाली ऐसी 10 लाइफ बदलनी है. सेम थिंग आई टॉक टू माय किड्स आल्सो कि तुम 500 अगर 10-10 की लाइफ भी बदलोगे, तो तुम आज की कोशिश देखो कि तुम कितनी लाइफ बदल पाओगे, और तुम जिस 10 की बदलोगे उन 10 को ये बोलना कि तुम्हें 10 की बदलनी है. So that will be the chain reaction will happen, and for sure it will happen. And बस ये है कि उस तरह से जो मैंने बचपन से सुना है, हम सबने सुना है, सोने की चिड़िया भारत होता था. तो मैं ये चाहती हूँ कि भारत दोबारा से सोने की चिड़िया बन जाए, और ऐसे स्लम्स जो हैं वो कम से कम हो जाएं, और एक अच्छा माहौल हम सबको दे पाएं, और हमारा बेटा जो है इतना सवरा हुआ हो कि बेटी पढ़ी हुई हो कि मेरा भारत फिर से प्यारा सा महान बना हुआ है, और भी महान हो जाए, और हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं. This is such a beautiful thought, Anubhuti. मतलब I always learn so much from each post you do, so keep on doing the hard work you're doing, and thank you for doing this. Thank you so much. Thank you so much, Akashi, for bringing it live, and I was able to talk to you, and
those who are watching me. Thank you so much Thank you again so and again. much. Take Thank care. you. Bye bye.